اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ کرن کرن اجالا سیریز، محمود فاروقی کے افسانے، مرتب مشہود فاروقی۔ آج کا افسانہ، پڑاؤ دوسری قسط، تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ایک بڑا سا ہوائی جہاز بہت نیچے سے گھوں گھوں کرتا ہوا گزر گیا۔ ماما کی چمکتی چاند پر اس کا سایہ پڑا اور ماما نے ایک دلچسپ گالی دی جس پر سب ہنس پڑے۔ ماما نے دوسری کرسی کھینچ کر اس پر پاؤں پھیلا دیے۔ قصہ بڑا دلچسپ تھا۔ سب ماما کو منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماما کو جب یہ احساس ہوا کہ سب کتنے متاثر ہوئے ہیں تو بجائے آگے بڑھنے کے اس طرح پائپ کھول کر اسے صاف کرنے لگا جیسے اس کو مزید کچھ کہنا نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا ماما؟ میں بھی پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ بتاتا ہوں، ذرا ٹھہرو۔ یہ سالا پائپ گھڑی گھڑی بھر جاتا ہے۔ دوسرے دن ماما نے تمباکو بھر کر ایک کش لیتے ہوئے قصہ شروع کیا۔ ڈالی نے 6 نمبر کرائے پر لے لیا۔ آتے جاتے آنکھوں میں مجھے جتاتی جاتی، دیکھو ماما کیسے مزے کا کھیل ہوتا ہے۔ وہ چھوکرا، کیا نام تھا اس کا؟ ماما پائپ سے سر کھجانے لگا۔ پاشا، بابو نے اپنی بیڑی جلاتے ہوئے یاد دلایا۔ پاشا، اچھا پاشا ہی صحیح۔ وہ ہمیشہ ناشتے کے بعد نیچے تالاب پر چلے جاتا تھا اور دوپہر تک وہاں بیٹھا رہتا، کبھی پڑھتا کبھی لکھتا اور زیادہ تر سوچتا رہتا۔ اس دن وہ جب نیچے گیا تو ڈالی بھی مچھلی پکڑنے کی ڈور لے کر تالاب پر چلی گئی۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ کچن کی کھڑکی میں سے ایک مرتبہ جو ادھر نظر گئی تو میں نے دیکھا وہ درخت کے سہارے کتاب لیے بیٹھا ہے اور ڈالی تالاب میں ڈور ڈالے بیٹھی ہے اور دونوں دور دور ہی سے کچھ بات چیت کر رہے ہیں۔ بیٹھے تو دور دور ہیں، یہ کہہ کر میں اپنے کام میں لگ گیا۔ لنچ کے وقت جب ڈالی خالی ٹوکری لیے ہوئے کچن میں آئی تو میں نے اسے چھیڑا، پھنسی کوئی مچھلی؟ ارے ماما، وہ ٹوکری جھلاتے ہوئے بولی، آج نہیں تو کیا کل بھی نہیں پھنسے گی؟ ارے جا، یہ تیرے جال میں آنے کی نہیں۔ میرے جال کا تجھے کچھ پتا ہے؟ جب آئے گی۔ ڈالی نے میری کھوپڑی کو ٹھوکا دیتے ہوئے کہا، اس توے پر تل تل کر کھاؤں گی اور تجھے ٹھینگا دکھاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں کے سامنے انگوٹھا نچا کر چلی گئی۔ شاید ایسا ہو، لیکن میں نے دماغ پر زور دے کر پاشا کی وہ ساری باتیں یاد کی جو وہ مجھے بتاتا رہا تھا کہ وہ پڑھ لکھ کر کیا بننے والا ہے۔ میں ملازمت نہیں کروں گا، وہ بڑے جوش سے کہا کرتا تھا۔
लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। अच्छे अखलाक, अच्छी बातें, आज़ादी, सीधे रास्ते, जाने और क्या क्या। शराब बंद हो जाए तो बहुत सी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। मामा तुम ताड़ी पीना छोड़ दो। ये सब कुछ याद करके मुझे इत्मीनान हुआ, नहीं, वो ऐसा नहीं, साली का दिमाग फिर गया है। मैं अपने ख्यालों में उलझा हुआ फ्राई पान में अंडे फेंट रहा था कि मैं किचन में दाखिल हुआ। मैं? बाबू बेसाख्ता तांस पड़ा। अरे मामा तुम नहीं, पाशा दाखिल हुआ। अरे हाँ, लंगड़ शाह, मेरा क्या जिक्र। पाशा किचन में दाखिल हुआ। मामा मुझे बहुत भूख लगी है, बस यहीं खाना दे दो। वो एक स्टूल खींचकर मेरे पास बैठ गया। आज क्या बात है, बहुत जल्दी भूख लग गई? मैं क्या जानूं, बस लग गई। पाशा ने एक उबला हुआ अंडा उठा लिया और उसे छीलने लगा। घुंघरियाले बाल रोशन माथे पर एक तरफ को लटक गए थे। चेहरे की साफ शफाफ जिल्द में से सुरख सुरख खून छलक रहा था। कितना भोला, कितना मासूम। ये असली खून है, बड़े ऊंचे पुरखों का खून। और ये दोगली जोंक, उफ, वो चिमट गई तो। क्या बुड़बुड़ कर रहे हो मामा, सिरके की बोतल तो उठा दो। सिरका? हाँ, सिरका बड़ी अच्छी चीज है पाशा, इससे खून साफ रहता है, खुजली खारिश नहीं होती। मगर मिलता कहाँ है मामा, दुनिया सारी खारिश में मुब्तला है, सबका खून सड़ गया है, इंसान खुजा खुजा कर लहू लहान हो रहे हैं और असली सिरका गायब। दूसरे दिन बरामदे में सफाई हो रही थी। फिनाइल की बू फैली हुई थी। मैं जब पाशा के दरवाजे पर पहुंचा तो डाली के हंसने की आवाज आई। घुंघरू बजता था साली के गले में। बाबू छुरी के दस्ते से अपनी लंगड़ी टांग को खुजाते हुए बोला, छन 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 बाजे घुंघरिया। मुर्गी के तुझे क्या पता, तू कहां था? बंबई में। सब हंस पड़े और वो अपनी क्रिंजी आंखें झपकाते हुए हैरत से देखने लगा और ये सोचकर कि शायद उसने कोई मजे की बात कह दी है, खुद भी जोर जोर से हंसने लगा। तो वहां पाशा के कमरे में वो मक्खी घुस गई थी और बड़े मजे से भिन भिन कर रही थी। मुझसे रहा ना गया और मैं दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। मगर हाय, वहां पाशा अकेला था और खिड़की के पास बैठा शेव बना रहा था। आहट सुनकर वो घूमा और मुझे खिड़की में डाली का चेहरा यूं नजर आया जैसे चंद्रमा वहां आकर अटक गया हो। ये चांद आज कैसा सवेरे सवेरे, बाबू ने पंकज मलिक की लय में तान खींची। खुश, मामा ने उसे घूर कर देखा। कोहनियों पर जोर देकर चेहरा हथेलियों पर टिकाए। मामा ने मेज पर कोहनियां टिकाकर डाली की अच्छी खासी नकल की। पीछे का पांव मोड़कर अनार के पेड़ से लगा रखा था और सुर्ख सुर्ख फूल उसके सर पर लटक रहे थे। इतनी अच्छी कभी नहीं लगी थी। मैं बस एक टुक उसे देखता रह गया। क्या देख रहे हो मामा? पाशा ने आईने पर झुके झुके पूछा।
तुम्हारी खिड़की में जाले तो नहीं लग गए? जाले? डाली खिलखिलाई। खिड़की में नहीं, तुम्हारे सर में। अरे मामा, आज ये जालों में क्यों सर खपाते फिर रहे हो? और काम नहीं है क्या? मेरा सर तो आईना है, आईना। मामा ने सर झुकाकर चंदिया पर हाथ फेर कर दिखाया। पाशा, वो आंखें नचाते हुए बोली, तुम मामा की चांद में देखकर शेव बना लिया करो और ये शीशा मुझे दे दो। पाशा बेसाख्ता हंस दिया। मामा, पैसा पैसा चांद दिखाई लगा दो, लोग शेव बना लेंगे, तुम्हारी चांदी हो जाएगी। ये कहकर डाली ने हाथ बढ़ाया और शीशा उठा लिया। मैंने चिढ़कर कहा, चुड़ैल, पाशा के आईने में देखने की तेरी शक्ल भी है? डाली तिलमिला गई और खिसिया कर बोली, है, क्यों नहीं? फिर वो खिड़की में कुछ और झुक आई। पाशा के सामने चेहरा बढ़ाकर उसकी आंखों में ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो, है ना पाशा मेरी शक्ल ऐसी? पाशा की पलकें झपकने लगी और चेहरा शर्म से सुर्ख अनार हो गया। मैं उल्टे पांव चला आया। जिस वक्त मैं स्टूल पर खड़ा बरामदे की चिकें खोल रहा था तो डाली सहन से गुजरते हुए चिक में मुंह डालकर बोली, मामा, तुमने देखा नहीं वहां कितने बड़े बड़े जाले थे? कहां? पाशा के कमरे में। वो आगे बढ़ गई। उसकी दूर होती हुई आवाज आई, अब वो कैसे निकलेगा? हाँ, कैसे निकलेगा? मैंने जोर से डोरी खींची और चिक टूट कर मेरे सर पर आ गिरी। मामा किरण ने सर पर दोनों हाथ फैलाकर और अपने कांधे झुकाकर चिक के गिरने की नकल की, जिसे देखकर लंगड़ा बाबू बेख्तियार हंस पड़ा। मुर्गी के, तू उस वक्त भी इसी तरह हंसा था। नहीं मामा, बंदे नवाज का कसम, हम नहीं हंसा था, हम तो उधर बंबई में रोता पड़ा था। तीन दिन हुए थे या 4। जिस दिन का मैं किस्सा बयान करना चाहता हूं, उस दिन शाम को मैं पाशा के कमरे में चाय देने गया तो वो कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था। मेरे पूछने पर उसने बताया वो सिकंदराबाद पिक्चर देखने जा रहा है और रात का खाना वहीं से खाकर आएगा। उस रात बारिश हो गई थी, हवा ठंडी चल रही थी। मेरे दाढ़ में भी दर्द होने लगा था, इसलिए मैं बरामदे से उठकर 4 नंबर में चला गया। इस लाइन के तीनों कमरे 5, 6 और 7 बंद पड़े थे। डाली भी नामालूम किस वक्त बाहर चली गई थी। मैं पाशा का ज्यादा देर तक इंतजार न कर सका और दर्द के मारे 4 नंबर में जाकर चारपाई पर पड़ गया। मालूम नहीं कितनी रात हो गई थी। छनाक से कोई आवाज आई और मेरी आंख खुल गई। 5 नंबर से घुटी घुटी आवाजें आ रही थीं। कोई भारी मगर धीमी आवाज में बोल रहा था, तुम अब चली जाओ, बस चली जाओ। कुछ देर खामोशी रही, फिर सोडे की बोतल खुलने और गिलास में उंडेलने की आवाज आई। किसी ने शायद गटागट गिलास पी लिया। बस डाली, बस डार्लिंग, ये पाशा की आवाज थी।
लेकिन कितनी बदली हुई। पाशा ने शराब पी रखी है क्या? मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। पाशा नशे भरी आवाज में बोल रहा था, तुम वहां मेरे पीछे पीछे बिल्ली की तरह मुझसे मिलने के लिए, हा हा हा, हे, तुम डाली, तुम मुझको ऊपर से नीचे धकेल रही हो, गड़े में नीचे, बिल्कुल नीचे, हा 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 हो। डाली ने कुछ कहा और बेअख्तियार हंसने लगी। फिर चटाक चटाक बार बार आवाज आई। बस बस, पाशा बोला। मेरा दम घुटने लगा। अरे बस उल्फती, बस कर। आज ही इतना सारा प्यार कर लेगी तो कल के लिए क्या बचेगा? कल तुम मुझे प्यार कर लेना पाशे, डाली ने कहा। फिर परसों मैं करूंगी, फिर तुम, फिर मैं। हरामजादी, मैं गुस्से से बेताब हो गया। फिर तुम, फिर मैं, चुड़ैल की बच्ची, जी में आया अभी जाकर साली को घसीटते हुए बाहर ले आऊं। शायद मैं ऐसा करता, मगर ये सोचकर हरामखोरी गुल मचाएगी, बड़ा उधम होगा, लोग कमरों से निकल आएंगे। मैं चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। इतनी देर में 5 नंबर में बराबर खुसर फुसर होती रही और कई तरह की मिली जुली आवाजें आती रहीं। दोनों नशे में धत आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कर रहे थे। सांस की गहरी साएं साएं में कोई लफ्ज सुनाई देता, कोई नहीं। अचानक पाशा की भारी आवाज आई। गालबन वो खड़ा हो गया और ठोकर से मेज उलट गई। मैं तुम जैसी औरतों के मुंह पर थूकता हूं। आख आख, जा, चली जा शैतान की बच्ची। मैं किसी उल्लू की पट्टी का आशिक नहीं हूं। मैं हुसैन हबीब मखदूम हबीब का बेटा। टुकड़ टुकड़ क्या देख रही है? मखदूम हबीब मेरा बाप। उन्होंने काला पानी ले जाकर उसे मार डाला, मेरे बाप को मार डाला। अंग्रेज के बच्चे, मैं इन सबको फांसी चढ़ा दूंगा। फांसी? बाप रे बाप, डाली चीखी। नहीं पाशे, तुमको पुलिस पकड़ ले जाएगी। अरे छोड़, तू क्यों चिल्ला रही है? क्या वो तेरे सगे हैं? मैं तेरा भी गला दबा दूंगा, पुलिस की बच्ची। शाबाश पाशा, मैंने दिल में कहा, तू खानदानी शेर है, मार साली को। मेरा गला? डाली की आवाज आई। दबा दो पाशा, मेरा गला दबा दो। मैं बहुत बुरी हूं, इस जीने से तंग आ गई हूं, लो दबा दो। मगर मेरे पाशे, एक बार, सिर्फ एक बार मेरा दिल भर जाए, फिर जो चाहे करना। मैं 4 नंबर में बेचैनी से बैठा ये सब सुन रहा था। बारिश जो न मालूम कब से शुरू हो गई थी, कुछ और तेज हो गई। छत पर बड़े जोर की टपाटप होने लगी। इसी टप टप में उधर की आवाजें कोशिश करने पर ही सुनाई दे रही थी। शायद पाशा अपनी जगह से उठा। खिड़की की तरफ उसके चलने की आवाज आई। मुमकिन है वो हमेशा की तरह दोनों हाथ टेक कर बाहर देखने लगा हो। यारो, मैं बड़ा खबीस हूं, मगर मेरा दिल चाहता था पाशा लौट कर उस छिनाल के मुंह पर एक थप्पड़ मार दे। मैं सांस रोके ऐसी ही किसी बात का मुंतजिर था। पांच नंबर में कुछ देर खामोशी रही। बाहर सारी दुनिया भी यकलख्त खामोश हो गई थी। बारिश अचानक रुक गई थी। वहां लकड़ी की दीवार में एक गांठ सी बनी हुई थी। मेरी नजरें उस जगह जमी हुई थी जैसे वहां से मुझे सब कुछ नजर आ जाएगा। हवा के जन्नाटों और बारिश के शोर से बचकर दूसरे कमरे की आवाजें सुनना
किस कदर मुश्किल हो गया था, लेकिन उस वक्त तो मैं एक सुई के गिरने की आवाज भी सुन सकता था। चुनाचे मुझे कपड़ों की सड़सड़ाहट सुनाई दी। शायद डाली उठ खड़ी हुई। हाथ के कंगन बजे। कंगन की आवाज बिल्कुल मेरे करीब लकड़ी की दीवार के उस तरफ जहां कपड़े डालने की अलगनी लगी हुई थी बार बार होने लगी। अलगनी पर 2-3 बार कपड़ों के गिरने की आवाज आई। गालबन आस्तीन का बटन दीवार से टकराया। वो क्या कर रही है? एक ख्याल बिजली की तेजी से गुजर गया। ओह बेहया छिनाल, अब क्या होगा? मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मैं बिल्कुल उस तमाशबीन की तरह बेचैन था जो मुकाबले के ऐन फैसला कुन मौके पर दम रोके नतीजे का मुंतजिर हो। कंगन फिर एक बार बजे। हा हू हा। डाली ने एक लांबी सी जमाही ली, शायद अंगड़ाई भी। हा। डाली। आवाज सुनकर पाशा खिड़की से पलट गया था। 1-2 सेकंड खामोशी सी तारी रही। यकीनन पाशा आंखें फाड़े उसे देख रहा था और वो चुड़ैल शायद मुस्कुरा रही हो। छत पर फिर बारिश की टप टप शुरू हो गई। अब क्या होगा? मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। डाली, पाशा ने तकरीबन चीखते हुए कहा। आवाज भारी और गुस्सैली थी। मेरे डगमगाते हुए दिल ने संभाला लिया और एक लहजे के उस 1000वें हिस्से में मैंने, हाँ, मुझ बदबख्त गुनाहगार ने अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह मेरे मालिक। दिल की कोई धड़कन सर से निकल गई और होंठ कपकपा कर रह गए। चटाख! पाशा ने यकीनन उसे थप्पड़ मारा। डाली धम से नीचे गिर पड़ी। उसके कंगन फर्श से टकराकर झुनझुनाए। वो मारा! मैं एकदम से उछल पड़ा। मुझसे कमरे में बैठा ना गया। जिस तरह तमाशबीन मायूसी के बाद किसी जबरदस्त हिट पर बेअख्तियार मैदान में दौड़ पड़ते हैं, मैं दौड़ते हुए बरामदे में पहुंचा और पाशा के दरवाजे के सामने बड़ी मुश्किल से अपने कदमों को रोक सका। अब दरवाजा खुलेगा और पाशा उस कमीनी को एक लात मारकर बाहर निकाल देगा। फिर मैं हा 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 उसके मुंह पर थूक दूंगा। चल ला डाली की बच्ची, अपनी खूबसूरत नाक काट कर मेरे हाथ पर रख दे। बारिश एकदम से तेज हो गई और कुछ इस जोर शोर से कि बौछार निस्फ बरामदे तक मेरी पुश्त पर आकर पड़ने लगी। 1 सेकंड, कई सेकंड, फिर बाहर बड़े जोर की गरज हुई। 1000 सेकंड, 1000 बरस। अरे क्या ये दरवाजा क्यों बंद है? पाशा! मैं बड़ी जोर से चीखा, लेकिन ये क्या? मेरी आवाज क्यों नहीं निकली? बिजली बड़े जोर से कड़की। एक झपक में मुझे अपना साया आगे की तरफ दौड़ता हुआ मालूम हुआ। मैं इंतजार ना कर सका। मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, लेकिन वो बंद था। अब मैं क्या करूं? पाशा क्या कर रहा है? मेरे पैरों को कोई चीज आकर लगी। मैंने झुककर देखा। जूते साफ करने की फर्शी थी जिसका एक सिरा बाहर निकल आया था। ओह, यहां से तो अच्छी तरह देखा जा सकता है। मैं वहां घुटनों के बल बैठ गया और अपना चेहरा ठंडे फर्श पर रख दिया। पानी की बौछार बराबर मेरी पीठ पर पड़ रही थी और बाहर मौसम दीवानों की तरह उधम मचाए हुए था और वहां कमरे में तेज रोशनी। दरवाजे के करीब फर्श पर मैंने क्या देखा? उफ, मेरे खुदा! अचानक मामा किरण
रुक गया, जैसे सोच रहा हो जो कुछ उसने देखा बयान करे या ना करे। क्या? लंगड़े बाबू से रहा ना गया। तेरी नानी का जलवा। अरे ओह हाय। जितने लोग बैठे थे सबके मुंह खुले के खुले रह गए और वो मामा किरण को यूं देखने लगे जैसे वो उस से खुले अल्फाज में कुछ सुनना चाहते हैं। लेकिन मामा ने कुछ ना कहा। वो खोए खोए अंदाज में एक तरफ देखता रहा, फिर इस तरह कुर्सी की पुश्त पर टेक लगा दी जैसे एक बड़ा बोझ सर से उतार कर थक गया हो। फिर उसने एक तरफ को झुककर मिट्टी का कुल्हाड़ उठा लिया जो शायद बाबू ने वहां लाकर रखा था, और उसे मुंह से लगाकर गटागट पी गया। ताड़ी का भपका आया तो मैंने अपने बुझे हुए सिगार को जला लिया। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाड़